Good morning, students. Welcome back to the class 11 Commerce, subject Business Studies. Today is the lecture number 2 of chapter number 1, Nature and the Purpose of Business. In last video, in lecture number 1, we have seen the introduction of business and then we have gone with the concept of business. We have also seen the economic and non-economic activities in the last video itself. So today we will go with the topic known as characteristics of business. So let's begin with the topic characteristics of business. Before starting, I would like to tell you that characteristics, features, and nature of business having a similar point which you have to write in the paper, whether it is coming as characteristics of business, features of business, or nature of business, the same points have to be written for the title. So let's begin with the characteristics or features of nature of business. So we are having a 7 points over here. The first point is economic activity. Second point is production or procurement of goods and services. Third point is sales or exchange of goods and services. Fourth point is deals in goods and services on the regular basis. Point 5 is profit earning. Point 6 is uncertainty of return. 7th point is elements of risk. So we will discuss this point in detail one by one in the video. Let's begin with the first point, economic activity. As we have started our topic as an economic activity, I said that economic activity requires money. Whatever you do in the business, you get money in exchange, it is considered as economic activity. I have given certain examples like uh, cooking food in the restaurant for the customers, then teacher teaches in school. This kind of examples has been given for economic activity. So one example with the image has been provided over here. You can see that the kids are in the restaurants and they are buying something in the restaurant. सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इकोनॉमी. यहाँ पे सिंपल सा वर्ड यहाँ पर मैंने यूज़ किया इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि जो भी बिजनेस आप करते हो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को मनी इन रिटर्न मिलता हो वो सब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो लेट्स गो विद द परफेक्ट डेफिनेशन. Business is an economic activity as it is undertaken with the aim of earning money. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका एम जो है वो अर्न करना है मनी और लाइववुड और लाइववुड को वो अर्न करे एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव अफेक्शन और एनी अदर साइकोलॉजिकल रीजन. हम लोगों ने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पढ़ा था जिसके अंदर ऐसा था कि हम लोग फ्री सर्विसेज देते हैं जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होती. जैसे मदर कुक्स फूड एट होम जिसमें मदर को मनी नहीं मिलता, whereas टीचर टीचर्स his or her own son because she doesn't charge, and that's why it is not considered as non-economic. In economic activity, it is very much clear that your aim has to be earning money or livelihood. Livelihood is related to the materials which can be taken for survival of their life. So economic activity is very much clear that you should be aiming for earning money. That's it. Then we can go for the second point. Second point is production or procurement of goods and services. Procurement title, I would say that procurement means action to obtain. प्रोक्योरमेंट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि एक्शन टू ऑब्टेन, आप वो चीज़ को ग्रैब कर सको, उसको हम लोग कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेट्स गो विद द टाइटल टर्म. बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वांट्स ऑफ अ कस्टमर. बिजनेस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है. So every business either itself produce the goods and services or procure them from others in order to sell them to the customers or users. यहाँ पर बिजनेस का मकसद क्लियर है कि कस्टमर्स की नीड्स को, कस्टमर के वांट्स को, कस्टमर के टेस्ट को
उसके प्रेफरेंस को फुलफिल करने को हम कहते हैं बिजनेस। यहाँ पर सीधा सा वर्ड यूज किया गया है, प्रोसेस जो आप प्रोडक्ट बनाते हो या सर्विस आप देते हो in terms of getting money is considered as money। आप बिजनेस कर सकते हो, एक जगह से प्रोडक्ट लेकर आके दूसरे को बेचोगे तो ये भी आपका एक बिजनेस है। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जो मैं साथ में चला देता हूँ तो बेटर रहेगा। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बोला गया है। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स आर कंसिडर्ड एज टेंजिबल। टेंजिबल का मकसद ये होता है कि जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो और यूज कर सकते हो, उसको कहते हो टेंजिबल। वेयर एज सर्विसेज, सर्विसेज को हम लोग इनटेंजिबल कहते हैं। अब इनटेंजिबल क्या है? इनटेंजिबल का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जिसको हम देख नहीं सकते बट इट कैन बी फील, हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो गुड्स भी यहाँ पर मैं दो टाइप के रखे हुए हैं। गुड्स में कंसीडर फॉर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में लिखा है कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, पेन एसेट्रा। उसके अलावा आप फूड का एग्जाम्पल ले सकते हो जो डे टू डे आप यूज करते हो। कोलगेट, ये भी आप डे टू डे यूज करते हो, लेकिन ये अपने तक लिमिट रखते हो, जिससे आपको पैसा नहीं मिलता, आप खुद यूज करते हो, उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। वेयर कैपिटल गुड्स क्या होता है? ऐसे गुड्स जिसका यूज करके आप मनी बनाओ, उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। लाइक मशीनरी, फर्नीचर एसेट्रा आर द रिसोर्सेज और गुड्स विच आर बीन यूज्ड इन बिजनेस। अब जब सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस के अंदर क्या होता है? सर्विस में आप वो सारे गुड्स को या सर्विसेज को यूज करते हो और फिर उसके लिए आप पे करते हो। सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एसेट्रा। आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो और फिर उसका बिल पे करते हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। टच करोगे तो एज यूजुअल आपको शॉक लग जाएगा। वेर एज ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आप सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए जितना खर्चा करते हो, तो वो एक तरह की सर्विस आपको मिलती है। आपको एक व्हीकल मिलता है, आप उसमें बैठते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो उसके लिए आप पे करते हो, उसको कहते हैं सर्विसेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। लेट्स गो विद द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप नेक्स्ट पार्ट आता है कि आप गुड्स को या सर्विसेज को बेचते हो या एक्सचेंज करते हो। सो लेट्स गो विद इट। All business activities are directly or indirectly concerned with transfer and exchange of goods and services for value। यहाँ पे जो value word use किया गया है, it means money or exchange of goods, that's it। So यहाँ पर clearly word use किया गया है, business activity डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करती है ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वैल्यू। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? आप एक गुड देते थे और दूसरा गुड्स लेते थे। वेरएज अब बार्टर सिस्टम नहीं चलता। आज मॉडर्न बिजनेस के अंदर आप प्रोडक्ट बेचते हो और इन रिटर्न आप मनी लेते हो। तो यहीं पे क्लियर वर्ड यूज किया गया है कि बिजनेस एक्टिविटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न है विथ ट्रांसफर और एक्सचेंज। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, तो उसमें एग्जाम्पल के बेस पे यहाँ पे कुछ लिखा है कि प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन कैनॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एज देयर इज नो सेल्स और ट्रांसफर फॉर वैल्यू। मैं पर्सनल यूज के लिए जो प्रोडक्ट लेता हूँ या परचेज करता हूँ या बनाता हूँ, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं वही चीज मार्केट में बेच दूँ और उससे पैसे अर्न करूँ तो वो मेरा बिजनेस हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियरली लिखा हुआ है, cooking food at home for family is not business, but the same cooking it at restaurant for the customer for charging it is considered as business। घर में जो खाना बनता है वो बिजनेस नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है कस्टमर्स के लिए वो एक बिजनेस है। पॉइंट नंबर 4, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही कहा था कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप डील करते हो तो वो आपका बिजनेस है। जैसे मैंने OLX का एग्जांपल दिया था कि OLX में अगर आप प्रोडक्ट एक बार बेचते हो और उससे प्रॉफिट अर्न करते हो तो वो आपका बिजनेस नहीं है। लेकिन आप
लॉट में या ह्यूज क्वांटिटीज में प्रोडक्ट लेकर आते हो और ओएलएक्स सोर्स के थ्रू हर रोज एक प्रोडक्ट बेच देते हो या आप एफर्ट्स डालते हो, उसको कहते हैं बिजनेस। Business involves exchange of goods and services on regular and recurring basis. बिजनेस हमेशा तभी ही पॉसिबल है जब आप उसको रेगुलरली या रिपीटेडली कंटिन्यूसली कंटिन्यू करते रहो, उसको कहते हैं बिजनेस। A single transaction of sales and goods does not constitute, यहाँ पे सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स और परचेज को हम लोग बिजनेस नहीं कहते। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ अ पर्सन सेल्स हिज मोबाइल एट प्रॉफिट it does not constitute business. However, if he keeps a stock of mobile sets and regularly sell them either from shop or from home, it is considered as business. आप यहाँ पर प्रोडक्ट जो है मोबाइल का अगर आप स्टॉक में रखते हो और रेगुलरली उसको बेचते हो तो वो बिजनेस है, लेकिन आपने एक ही टाइम प्रोडक्ट बेचा है और उससे प्रॉफिट बनाया है तो वो बिजनेस नहीं है। पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको हम लोग ब्लड भी कह सकते हैं, ब्लड लाइफ लाइन कह सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं होगा। इसीलिए प्रॉफिट अर्निंग करना कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्न टू प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप चैरिटी करते हो या जितना कॉस्ट आपका है और उससे कम में आप प्रोडक्ट बेचते हो तो वो प्रॉफिट नहीं है, उससे आपको नुकसान ही होना है। तो इसीलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बिजनेस सेल्स गुड्स एट द लेसर देन कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट एज चैरिटी कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स देते हो या कॉस्ट जितना आपका है और उससे लेस में आप अगर प्रोडक्ट बेचते हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में। इसीलिए बिजनेसमैन हमेशा ट्राई करते हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी मतलब यहाँ पे आप फोरकास्ट करते हो, एज्यूम करते हो कि आपको कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको खुद को पता नहीं है कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे बिजनेस में भी आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या नेक्स्ट टाइम आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करेगा। सो एवरी बिजनेस एम अर्न टू प्रॉफिट, हाउएवर देयर एग्जिस्ट uncertainty of return that the business may earn on his investment. मैं अगर अपने बिजनेस में पैसा लगाता हूँ तो मैं श्योर करूँगा कि मेरा को प्रॉफिट रिटर्न में मिले, लेकिन वो प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अनसर्टन है, मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो एक तरह का रिस्क हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। तो जब रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क में हमारा एक मेन मोटिव ये भी होता है कि हम अर्न करें प्रॉफिट। इट इज नॉट कंसर्न एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। यहाँ पे क्लियरली वर्ड यूज किया है कि आपको ये नहीं पता होगा कि प्रॉफिट कितना आएगा, लेकिन पॉसिबली अगर आपने अपने एफर्ट्स दिए हैं, आपने बेस्ट दिया है और फिर भी आप लॉसेस अर्न कर रहे हो तो देयर इज अ मिस्टेक और देयर इज अ प्रॉब्लम व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू टेक एज डिसीजन। आप अगर डिसीजन ले रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, फिर भी अगर आप लॉसेस बना रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, इसलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। अब अगर आप अनसर्टन हो तो आप रिस्क भी ले रहे हो, तो रिस्क कौन से लेवल्स पे लेते हो। रिस्क इज एन अनसर्टन एसोसिएटेड विद एक्सप्लोर ऑफ लॉसेस। लॉसेस के रिलेटेड आप रिस्क लेते हो। उसके अलावा आप कस्टमर के टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन के रिलेटेड रिस्क लेते हो। फिर प्रोडक्शन रिलेटेड आप रिस्क लेते हो, स्ट्राइक रिलेटेड रिस्क लेते हो, इंक्रीजिंग कंपटीशन, फायर, थीफ एक्सेट्रा, ये सब रिलेटेड कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से आप रिस्क ले रहे हो। जैसे यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात हो रही है तो कस्टमर अपने हिसाब से, एज के हिसाब से अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करता है। वेरेस प्रोडक्शन मेथड में आपने चेंजेस कर लिए तो उसके वजह से भी आपने रिस्क ले लिया। यूनियन वाले स्ट्राइक पे चले गए, ये भी एक तरह का रिस्क है।
आपके साथ में और नए नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, ये भी एक तरह का रिस्क है। कंपनी में आग लग जाना, कंपनी में चोरी हो जाना, ये भी एक तरह का रिस्क है। Every business in the world involves some degree of risk. No business can although do away with the risk. कोई भी बिजनेस रिस्क लिए बगैर ग्रोथ नहीं कर सकता। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी आप जाओ, वहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो रिस्क लेना ज़रूरी है। So we have completed 7 characteristics of business in detail. In next lecture, we will continue our further topics related to profession, employment, and so on. So, I hope you have understood the 7 topics in detail. If you don't understand any topic or any concept, you can comment back to my video itself. Uh, that's it for today. Thank you for watching. End of lecture 2. Thank you.